Okay, sum number 17 on page number 75. Okay, so let us start. क्या लिखा है? From the data, discuss the type of association between. बोल दिया है पहले से ही. किसके बीच का एसोसिएशन चाहिए? पर्सन residing in industrial area and suffering from asthma. Suffering from asthma. So बेटा obviously ये तुम्हारा A बन जाएगा और ये तुम्हारा B बन जाएगा. तो इसका जो ऑपोजिट है, ओके, इसका ऑपोजिट मतलब पर्सन नॉट रिसाइडिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया, बराबर, नॉट रिसाइडिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया एंड नॉट सफरिंग फ्रॉम एस्थमा. सो ये तुम्हारा बन गया अल्फा और ये तुम्हारा बन गया बीटा. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, तो इसका हम लोग बनाएंगे टेबल. रिसाइडिंग ए, नॉट रिसाइडिंग अल्फा. यहाँ पे उसका टोटल suffering B and not suffering beta and here total. और ये सब उसकी frequency. So this is AB, this is alpha B, this is B, this is A beta, alpha beta, beta, A, alpha and N. So let us read the statement. Using proportional method and method of comparing observed and expected frequency. So we have to use two methods over here. चलिए, out of a sample of 360%, so total 360 के हमने sample लिए, 200 were residing in industrial area. तो ये 360 में से 200 are residing in industrial area. Let me write down over here. So N is 360. Out of this, 200 are residing in industrial area. In all, 80% were suffering from asthma. So total 80. And of them, मतलब 80 में से 60 were residing in industrial area. बराबर. अब हमें बाकी डिफरेंस मिल जाएगा. So ये 80, 60, this is 20, this is 360, 200. So this is 160. Okay, this is 360, 80. So this is, I think, 280. 160 and 20. So this is 140. 260. So that is 140. So we have got the total. All right. Now we have to apply the formula. चलो बेटा, पहली मेथड कौन सी बोली उन लोगों ने? पहली बोली हमें प्रोपोर्शनल मेथड. बोलिए जी, प्रोपोर्शनल मेथड में क्या करेंगे हम लोग? AB अपॉन B. So what is AB upon B? 60 divided by 80. तो 60 divided by 80 करो, कितना होता है?
60 divided by 80, how much it is? 0. 0175. And A beta upon beta, that is 140 upon 280. I think it is 0.5. So AB upon B is greater than A beta upon beta. Therefore, there is positive association. So ये हमारी proportional method. Okay. The second one is observed and expected frequency method. So observed expected frequency method. So observed matlab AB. So what is AB? AB is 60 and A into B upon N. So what is A into B upon N? 200 into 80 divided by 360. That comes to how much it is? 1600. कितना आएगा करो तो 200 into 80 upon 360. 200 into 80 upon 360. How much it is? कितना आया? 4.44. 200 multiplied by 80 divided by 360. So it is 44.44. So AB is greater than A into B upon N. Therefore, there is positive association. 18 number का सम देखेंगे अब हम लोग. From the following data, find Yule's coefficient of association between attributes A and B. So आपको रेडीमेड जो है टेबल आपको दिया हुआ है. So उसी हिसाब से हम लोग जो टेबल है वो बना लेके. ओके अब यहाँ पे जरा ध्यान देना सब लोग. यहाँ पे ए अल्फा लिखा हुआ है और यहाँ पे बी बीटा लिखा हुआ है. कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. तो जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी. ये होगा ए बी, ये होगा ए बीटा, ए अल्फा बी, अल्फा बीटा, अल्फा बी बीटा और एन. सो दिस इज 30, this is 20, this is 50, 70, 30, सर स्क्रीन अटकी गई है. 100. Okay, so 30, 70, 100. This is 20, 30. So this is 50 and this is 100, 50, 150. So you got the total on both the sides as 150. अब मुझे ढूंढना है यूज कोएफिशिएंट. तो यूज कोएफिशिएंट सबसे इजी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें. सो ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी अपॉन ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी. सो बोलो ए बी इंटू अल्फा बीटा, ए बी इंटू अल्फा बीटा એટલે 30 इंटू 30 माइनस 70 इंटू 20 डिवाइड बाय 30 into 30 plus 70 into 20. So that is 900 minus 1400
डिवाइड बाय 900 प्लस 1400. सो बोलो कितना आया? 900 माइनस 1400 करो तो यू विल गेट माइनस 600, सॉरी माइनस 500 डिवाइड बाय 2300. सो 500 डिवाइड बाय 2300. सो योर आंसर इज 0.22, वो भी माइनस में. सो इट इज माइनस 0.22. अब बेटा क्यू नेगेटिव है तो बोलने का देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन, एज सिंपल एज दैट. पूछा नहीं है, और अगर मान लो पूछा होता तो हम कह देते कि देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन बिकॉज क्यू इज नेगेटिव. अगर क्यू पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव एसोसिएशन, क्यू जीरो आया तो देयर इज नो एसोसिएशन. एज सिंपल एज दैट, एकदम इजी. बराबर. उसके बाद 1920 यू आर डूइंग ऑन योर ओन. आई एम डूइंग 21 नाउ. 21 पे आ जाओ बेटा सब लोग. क्या लिखा है? In an investigation of 60 persons, it was found that 25 were suffering from tuberculosis. ठीक है. 40 persons were inoculated against tuberculosis. 7 persons were not inoculated and not attacked by tuberculosis. Find the coefficient of association. बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको सीधे मुंह नहीं बोला है यूल्स ढूंढना है, हमको बोला है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. बिटवीन whom? Between inoculation, okay, between inoculation against TB and free from the effect of TB. Free from effect मतलब not attacked. बराबर ना, not attacked by TB. फ्री मतलब not attacked by TB. So बेटा ये तुम्हारा बन गया A, तो इसका ये बन गया B. अब इन दोनों का ऑपोजिट. So inoculated, so not inoculated, not inoculated against TB. So that will be your alpha. And attacked by TB, that is beta. Okay. Now let us draw the table. So inoculated A, not inoculated alpha, total, not attacked B, and attacked beta, total. This is your AB, alpha B, B, A beta, alpha beta, beta, A, alpha, N. So let us start. In an investigation of 60 persons, so N is 60, 25 were suffering from tuberculosis. Suffering मतलब attacked. ठीक है, ये ध्यान रखना. यहाँ पे इन्होंने वर्ड के साथ हमें खेला है. सो अटैक मतलब सफरिंग. ठीक है. सो सफरिंग कितने लोग हैं? 25. Okay, 25 were suffering from TB. 40 persons were inoculated against TB. So 40 persons were inoculated against TB. 7 persons were not inoculated and not attacked. So not inoculated, not attacked. ऐसे कितने लोग हैं? 7. ठीक है. So find the coefficient of association. So बोलो ये 60, ये 25, मतलब ये 35, ये 35, ये 7, मतलब ये 28, 40, 28 यानी ये 12,
ये 25, ये 12 मतलब 13, 13 and 7 that is 20. That's it. ठीक है, और अब मुझे ढूंढना है Q. So just cross multiply AB into alpha B minus, I'm sorry, AB into alpha beta minus A beta into alpha B upon AB into alpha beta plus A beta into alpha B. So बोलो AB into alpha beta यानी 28 into 13 minus 12 into 7 divided by 28 into 13 plus 12 into 7. So बोलो 28 into 13 करोगे अगर आप, so 28 multiplied by 13 is 364 minus 84 divided by 364 plus 84. So 364 minus 84, that is 280 divided by 364 plus 84, that is 448, and 280 divided by 448 is 0.625, which is approximately 0.63. अब 24 में क्या है देखो, in a city X 1 lakh out of 6 lakh were literates, ठीक है, and of them 10,000 were criminals. From the illiterate persons 80,000 were criminals, ठीक है. इन सिटी वाई, अभी अभी दो सिटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है. इन सिटी वाई 80,000 out of 5 lakh were literates and out of them 8,000 were criminals. From the illiterates 3,80,000 were not criminals. Okay, use Yule's method to compare the coefficient of association between literacy मतलब literate and criminality मतलब criminal. So it is very obvious, literate is A, so criminal would be B. इसका opposite illiterate would be alpha and not criminal would be beta. अब यहाँ पे को करना क्या है, मजूरी. कैसी मजूरी, आपको दो सिटी की इंफॉर्मेशन दी है. पहले हम बात करेंगे सिटी एक्स की, ठीक है. चलो पहले हम उसका टेबल बना ले. You would require quite a big table because the values are in lakhs, ठीक है. So literate A, illiterate alpha, total, criminal B and not a criminal beta, and then lastly total. So this is AB alpha B, B A beta alpha beta, beta A alpha n. So let us find out for city A. So what does city A stay, city X, sorry, in city X 1 lakh out of 6 lakhs were literates. So total 6 लाख थे, उसमें से लिटरेट है 1 लाख. सो लिटरेट अगर 1 लाख है तो ये 5 लाख हुए. Okay, so in a city X 1 lakh out of 6 lakhs were literate and of them
10,000 वेर क्रिमिनल्स, मतलब 1 लाख में से 10,000 क्रिमिनल्स थे। ओके, फ्रॉम द इलिटरेट पर्सन, मतलब 5 लाख में से 80,000 वेर क्रिमिनल्स, सो यहाँ पे आएगा 80,000, तो ये हो जाएगा 90,000, तो ये हो जाएगा 5,10,000। कैसे? 6 lakhs माइनस 90, 5 lakh माइनस 80 એટલે 4,20,000, 1 लाख माइनस 10,000, मतलब ये हो जाएगा 90,000। चलिए अब हम क्यू ढूंढ ले इसका, सिटी एक्स का। सो क्यू इज इक्वल्स टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी। सेम चीज जाएगी इसके डिनोमिनेटर में, सो ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी। Now just placing the figures, so that is 10,000 into 4,20,000। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना सब लोग, बिकॉज कैलकुलेटर में इतनी बड़ी फिगर आएगी नहीं। 90,000 इंटू 80,000, तो कैसे करेंगे वो देखो। डिवाइड बाय 10,000 इंटू 4,20,000 प्लस 90,000 इंटू 80,000। अब बेटा एक चीज नोट करने वाली ये है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 8 जीरो है टोटल, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी देखो 4 और 4 8। इन शॉर्ट 8 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे कॉमन निकल के। तो तुम्हारी अगर मैं नेट फिगर बोलूं तो ऐसी बचेगी ये 1 इंटू 42 माइनस 9 इंटू 8। ऐसा आपने कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहाँ भी 4 जीरो कॉमन निकाले, यहाँ भी 4 जीरो, तो टोटल 8 जीरो कॉमन हुए ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे 8 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। सेम वे ये भी 1 इंटू 42 प्लस 9 इंटू 8, दैट इज 42। ये हो जाएगा कैलकुलेटर में 42 माइनस 72 अपॉन 42 प्लस 72, so it is minus 30 upon 114. So what is q? 30 upon 114 करो, so it is 0.26, वो भी माइनस। बेटा ये तो सिटी x का आया, अब हम बात करेंगे सिटी y की। ठीक है, तो सिटी y में भी सेम चीज करनी है हमें। बोलो सिटी y में लिटरेट्स a, illiterates alpha, total, criminal b, not criminal beta, so this is total। बोलो ए बी अल्फा बी बी ए बीटा अल्फा बीटा बीटा ए अल्फा एन। चलिए फिर लेट अस स्टार्ट। इन सिटी वाई 80,000 आउट ऑफ 5 लाख वेर लिटरेट, तो टोटल 5 लाख हैं, उसमें से 80,000 लिटरेट है, and out of them 8,000 were criminals. From the illiterates 3,80,000 were not criminals. I'm sorry, criminals नहीं, not criminals। 3,80,000 were not criminals। ठीक है, तो चलिए ये 5 लाख એટલે ये 4,20,000 हुआ, ये 380 है मतलब ये 40 हुआ, ये 48 हुआ, सो ये हुआ 72, और ये हुआ 4,52,000, 4,52,000। चलिए फिर लेट अस फाइंड आउट क्यू। सो इट इज ए बी
है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी डिवाइड बाय ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी। सो बोलो ए बी इंटू अल्फा बीटा यानी 8,000 इंटू 3,80,000 माइनस 72,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 3,80,000 प्लस 72,000 इंटू 40,000। अब सेम जो हमने उसमें किया बेटा वही चीज मैं यहाँ आपको बताऊंगा। इसमें भी हम लोग कॉमन निकाल देंगे। देखो गिनो कितने जीरो कॉमन निकल रहे हैं, ये 3 यहाँ पे और 4, એટલે 7 जीरो यहाँ पे, ये 3 और 4 तो 7 जीरो यहाँ पे। सेम चीज 7 जीरो नीचे कॉमन, 7 जीरो ऊपर कॉमन, तो 7 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ऑब्वियसली। सो अब जो बचा वो 7 जीरो निकालकर हमारे लिए बचा होगा। तो बोलो क्या बचा यहाँ पे बचा 8 इंटू 38 माइनस 72 है ना इंटू 4 है ना। ये 4 जीरो और 3 जीरो सारे जीरो उड़ गए, समझ लो ना, सारे के सारे जीरोस जो हैं वो तुम्हारे कैंसिल हो गए। सेम वे वही चीज नीचे हुई, डिवाइड बाय 8 इंटू 38 माइनस 72 इंटू 4, सॉरी प्लस। सो बोलो 8 इंटू 38 304 माइनस 72 इंटू 4 288 बराबर, डिवाइड बाय 304 प्लस 288। सो बोलो कितना आएगा बेटा, 304 माइनस 288 એટલે 16 डिवाइड बाय 304 प्लस 288 592। सो इसका क्यू आया 16 डिवाइड बाय 592 दैट इज 0.027। सो एक्स में नेगेटिव क्यू एसोसिएशन है और वाई में पॉजिटिव एसोसिएशन है, बट वो पूछा नहीं है हमको, सिर्फ बोला है फाइंड यूज कोएफिशिएंट, तो वो हमने ढूंढ लिया। दैट्स इट।